Okay, dear students, today we are going to discuss unit number 9. As we have already discussed this, there is a tragic story of an old gardener whose name was Navasad, and he was expecting, he was very hopeful, or we should say that he was very optimistic uh, while he was waiting for his son who had been outside for 10 years, for a long period of 10 years. He had been abroad and now he was back. And Nawasad was waiting in Ashad and he was quite emotional, we should say that excited to just see his son after a long time period of 10 years. Uh, the story we know that he had been outside, he had been abroad for study purpose in Moscow, the capital of Russia, and now he had come back, but he was with the chairman of the area. He had been sitting with that person and he was taking tea there, but he was very keen. He was very, we should say that his father, though he was not his real father, but still he had been like his father. He had been his benefactor, he had been his patron, who had grown him up with too much difficulties that he had grown up him, but still he was very happy that he had grown his child, his son, his who was actually his nephew. And uh, now he came back and he had been waiting. And actually this is the story, this is the basically we should say that that is a conflict, that he was hopeful. He hoped that his son would come to see him at his house, so he picked so many we should say that fruits, and he wiped the dust off his belongings that were present in the home, and he even borrowed a cloth for covering the table and couch and that was present in his home, and he was quite patiently waiting. And in the end, it turned to be evening, and even after that evening, he just went into deep sleep or slumber, and his son didn't come. In the morning, he saw that his son was just going outside. He was studying and he was leaving that town where Nawasad was living. So this is a story of a thankless child who was quite indebted to, we should say that, his father, his benefactor, his patron. Now we come towards the questions. What are the questions? And we should discuss briefly all these questions, though you have the books, though you have notes, all the things you are present with. The very first question is that what arrangements were made by Navasad for the coming home of Vashak? It is quite simple. If you go through the chapters very well, definitely you can answer this question. He plucked watermelon, picked the honey sweet fruit, chose clean figs, and took his 6 months old white lamb with him for Ashik. He wanted to offer him meat after slaughtering that lamb, and he had saved that lamb for the specific occasion. And then he cleaned the house, swept the yard, and sprinkled it with water. He made little repairing in his house. He borrowed a new tablecloth from the neighbors and covered the table with it. He shook out the rug, covered the couch, and put pillow on it. He cleaned the squares. Squares mean that those were the sticks. Those were the wooden sticks that were used to carry or hold foods while they are prepared for cooking purpose, right? And he wiped the dust off the lamp, right? All these were the arrangements that he made. He was excited, he was emotional. The question number two is that why was Navasad so excited at the arrival of Ashok? It's quite clear that he was excited just to see his son after long 10 years, and he had been emotionally attached with that person when he was child. You had read through the story that he had we should say that been very closely attached to that person. He had been making him comfortable during his childhood and when even he was studying. So all these things happen. See Ashok after a long period, the main reason was that
he had to see him after a long period of 10 years. Then he waited patiently to meet him. He was his nephew whom he had brought up and sent him abroad for higher studies. He supposed that Ashok would like to come there and call up all the time spent with his uncle. As he was calling up, वो खुद भी इसको कॉल अप कर रहा था, उसके माइंड में सारी कन्वर्सेशन चल रही थी, बातें चल रही थी. It would be a pleasure to Nawasad and Ashok as well as thought by the old peasant. Peasant mean farmer. The next question is that describe the plight of Navasad after the departure of Ashok without meeting him. That's very important question, and that is the, we should say that the turning point here. यानी उसकी जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी. Of course he was completely shocked and he even couldn't accept that he was posing. Students, you should wait, and I'll ask you question in the last 5 minutes. Okay, just let me complete first my lecture. Describe the plight of Navasad. After he had come to know from his neighbors that Ashok was going back with seeing him, he was shocked and felt quite helpless. He felt as if the roof had come down on his head, and he was exhausted. Exhausted means he was completely, we should say that, free of energy. It seemed that he was quite energetic before, when he was expecting that his son would come and they would just spend time together. uh, because of that excitement, emotion, as we came to know that while reading the chapter, that when he heard the news of his son's coming, the sun shone brightly, even 10 times more bright, or it was shining brighter than before, 10 times brighter than before. He tripped while making his way down. Trip mean he almost fell down, mean he was not having any sort of energy in him. And the writer shows him as an old man in this part of the story. And now he was quite old, more, we should say that, pathetic and miserable and pitiable condition of the old man, that is quite, we should say that, seenable to everyone. Uh, the question number 4, what is the central idea of the story, White Lamb? Is this theme relevant to our culture as well? Central theme इसका क्या है? Of course central theme यही है, in gratitude of that, we should say that a thankless child, and the tragedy, or we should say their sorrows, or we should say grief that the old man was feeling at that moment when his son didn't come. The story revolves around a main character of Ashok, who appeared to be very thankless to his guardian and uncle. Guardian भी था और uncle भी था उसका. He was like his father. The central idea is the kindred affinity, very kind, very gentle attraction and affiliation and emotional attachment of a poor old man to his nephew whom he brought up, and thankless that attitude of blood relation of him. तो उसका जो ब्लड रिलेशन था वो बिल्कुल उसके साथ थैंकलेस नहीं था, सॉरी, मीन के थैंकलेस था, थैंकफुल नहीं था. तो ये उसका एक प्रॉब्लम था. स्टेटस एंड वेल्थ सीम टू बी अ सेपरेशन स्क्रीन. यानी यहाँ पे हमें ये बताया गया कि स्टेटस और सेपरेशन जो है, वी शुड से दैट एक सेपरेशन स्क्रीन था स्टेटस और वेल्थ उसके लिए. यानी ही हैड grown up to a very high person of social, higher social hierarchy, we should say that. And separation screen between two blood relations, though less relevant to our culture, some cases of such pathetic situation are to be observed here too. यानी कुछ केसेस हमारे यहाँ पर भी पाए जाते हैं, इस तरह के केसेस मौजूद होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी. अब जब हम प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट आपको, जैसे पहले मैंने क्लास में भी हमने डिस्कस किया, बताया कि प्लॉट का मतलब होता है कि लॉजिकल कनेक्शन ऑफ द इवेंट्स दैट आर गोइंग थ्रू द स्टोरी. उनका आपस में लॉजिकल कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, कितना लॉजिकल है, कितने, वी शुड से दैट के स्ट्रांगली, कितने एक लॉजिकल बेस के ऊपर, या उनको कितना एक तरह से सीक्वेंस में बनाकर उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है, या इवन उसमें कुछ इवेंट्स हैं भी सही या नहीं, या सिंपल सा एक है जिसमें सस्पेंस नहीं है, जिसमें सिंपल एक स्टोरी एक लाइन के ऊपर चल रही है, प्लॉट्स, उसमें इवेंट्स इस तरह के हैं जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं बाय द रीडर. तो we can see that this plot, the plot of the story, is not so much complicated
इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दो देयर इज सस्पेंस इन द स्टोरी व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर ए सन एंड द रीडर कैन नॉट गेस इफ ही वुड कम और नॉट। रादर ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि रीडर ये गेस करता है कि उसका बेटा उसकी तरफ आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम ग्रो करता है सस्पेंस बढ़ता है, लेकिन सस्पेंस के साथ साथ फिर थोड़ा सा आइडिया होने लगता है कि शायद उसका बेटा उसकी तरफ नहीं आएगा। तो अगर हम इस प्लॉट की बात करें तो ये ऑफ कोर्स एक सिंपल प्लॉट है, सस्पेंस है इसमें, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एक आयरनिक ब्लेंड इसमें उन्होंने दिया है, ये यानी एक आयरनी टाइप एंड पे शो की है स्टोरी के। द प्लॉट इज द लॉजिकल कनेक्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन अ स्टोरी। हम अब इसकी तरफ आते हैं। The plot of the story consists of a series of simple incidents of arrangements to be made by an old man to welcome his nephew who arrived in the village after 10 years, right? ये तो एक सिंपल सी स्टोरी, एक सिंपल सा सीन है कि वहाँ पर these simple happenings include bringing home some fruits, cleaning house and repairing and decoration of the household item in the end। यानी सस्पेंस है इसमें, हम सस्पेंस का एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि सस्पेंस इज फाउंड इन द बिगनिंग एंड इवन in the middle of the story until the end. We find a lot of suspense in the story, but in the end when he looks at the car going away speedily, uh, Nawasad, who was just looking at that, that suspense comes to an end, and with that suspense we come to know that the conflict also comes to an end। conflict है यहाँ पर, conflict है between his hoping, we should say that his hope that he would come and the situation that was turning arising that he might not come। In the end, the plot turns to ironic situation when the person awaited very keenly doesn't come to meet him। The plot is simple, but in the end, ironic blend is presented। आप इसमें सस्पेंस भी डाल सकते हैं, द वर्ड सस्पेंस लिख सकते हैं कि यहाँ पर सस्पेंस भी है प्लॉट में, और उसके साथ फिर आप डाल सकते हैं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट एक डेफिनेटली प्रेजेंट है स्टोरी में। तो वो कॉन्फ्लिक्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ भी रहा है, उसको हम सेपरेट भी डिस्कस करते हैं। इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, द वाइट लैम्प, इफ यस हाउ इज इट रिजॉल्व। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स होता है, ऑलमोस्ट हर स्टोरी में होता है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट के बगैर ऑलमोस्ट किसी भी स्टोरी में हम ये नहीं सपोज कर सकते कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तकरीबन हर स्टोरी के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है। तो द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी इज बिटवीन नवासर's होप्स ऑफ मीटिंग अशक एंड हिज डिलेइंग टू अराइव इन नवासर's हाउस। यानी स्टार्टली इनिशियली ये एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और एंड तक चलता है। द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस when the old reaches home and begins waiting and wonders why Ashok has gone to the chairman without an apparent reason। ठीक, तो यानी यहाँ पे क्लाइमेक्स पे पहुंचता है जब वो वहाँ पे वेट करते करते सो जाता है। द कन्फ्लिक्ट रीचेस इट्स क्लाइमेक्स एज इज वेटिंग फॉर लॉन्ग्स एंड वेंट स्लीप। और जब वो सो जाता है क्लाइमेक्स पे पहुंचता है, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आ रहा है नहीं आ रहा, फिर वो दरम्यान में एक लड़के को भी भेजता है। तो द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व व्हेन, ये रिजॉल्व हो जाता है व्हेन ही लुक्स एट अर्शक्स कार स्पीडिंग अवे फ्रॉम द विलेज। तो वहाँ पे जब वो उस पे इन द एंड ऑफ द स्टोरी देखता है और कि वो नहीं आ रहा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, स्टोरी एंड हो जाती है। हाउ वुड यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इफ यू वर द ऑथर ऑफ द वाइट लैम्प। अब यहाँ पे उन्होंने एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आप अपने तौर पे अगर आपको स्टोरी का ये बनाया जाता राइटर, तो आप उसको कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व करते या इसको ख़त्म करते। आई वुड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ये अकॉर्डिंग टू माइन, यानी मैंने एक किस तरह से बनाया है, आप अपने तौर पे बना सकते हैं। आप अपने तौर पर इसको कोई और एंड देना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं किसी और तरीके से, यू कैन डू इट क्वाइट इजीली। आई वुड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद द मैसेज ऑफ अशक। यानी यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते थे कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते, मैसेज ऑफ अशक कन्वे टू हिज अंकल फॉर नॉट कमिंग सी हिम। यानी हो सकता था कि उसका बेटा उसको एक मैसेज कन्वे करता थ्रू समबॉडी कि वो वहाँ पर उसके पास नहीं आ रहा। द मैसेज वुड बी कन्वेड थ्रू सम सर्वेंट। ठीक है, तो मैसेज जो है वो किसी सर्वेंट के थ्रू कन्वे किया था। ठीक है, उसके थ्रू कन्वे किया जाता और उसको ये कहा जाता कि वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसको ये कहता कि वो नहीं आ रहा, उसको कोई काम है या इस तरह की कोई बात करता, सम सर्वेंट ऑफ द चेयरमैन। इट माइट बी अबाउट द रीजन ऑफ गोइंग बैक ऑफ हिम इन सम अर्जेंसी। हो सकता है कोई उसको एमरजेंसी होती, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता, उसने वापसी जाना होता। आशिक वुड शो सम एक्सक्यूजेस टू हिज अंकल फॉर नॉट कमिंग देयर दो। जी, तो अगरचे रीज़न जो है
रीज़न तो यही होती सपोज, यानी मैं अगर इसको करता तो इस तरह से करता कि अगरचे रीज़न तो यही होती कि वो सोशल स्टेटस होता, वेल्थ होता उसकी, वो ना आता, लेकिन वो एटलीस्ट प्रिटेंड कर सकता था कि मुझे कोई काम है या इंपॉर्टेंट मैसेज है मैंने वहाँ पे कन्वे करना है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैंने आगे जाके सर्विस है कोई परफॉर्म करनी है, कोई इस तरह की बात, तो उसमें ये इस तरह से कर सकता था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो हमने यहाँ पे कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है कैरेक्टर्स ऑफ नवासाद एंड अशक का, ठीक है। तो उन दोनों के कैरेक्टर्स में ऑफ कोर्स हमें नज़र आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्वाइट अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। Navasad is a kind, simple, poor, and sympathetic person who grew up his nephew very well. He managed to educate him even by selling his belongings. He kept his nephew happy and comfortable when Ashok was in his childhood and boyhood. On the other hand, Ashok is quite a thankless child who didn't care for his real blood relation. He kept in view his social status. Materialistic approach of this his is conveyed through the attitude. He couldn't even show a kind word to his benefactor and patron. He is a callous and cold person, right? तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक कैलस पर्सन है, कोल्ड पर्सन है, जो कि अपने रियल ब्लड रिलेशन के लिए भी केयर नहीं कर रहा। उसके बाद हम आते हैं, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। शेक्सपियर की एक सेइंग है जिसमें वो ये कहता है कि जो थैंकलेस चाइल्ड होता है वो इवन सांप के दांत जो होते हैं उससे भी ज़्यादा जहरीला होता है। तो थैंकलेस से मुराद है नाशुक्रा, जो अपने माँ बाप का, अपने वालदैन का शुक्र नहीं करता। तो शेक्सपियर स्टेटमेंट इज क्वाइट ट्रू टू द इवेंट अकरिंग इन द स्टोरी। नवासार इज हर्ट एंड इमोशनली डैमेज बाय द एटीट्यूड ऑफ अर्शक। ऑफ कोर्स वो इमोशनली हर्ट हुए, डैमेज हुई है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हुई है। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज सन, all the people around in the community, they were looking for that his son would come to see him, and they were saying that he was a fine son and he was very unique sort of characteristics that they found in his son. Though Navasad is not hurt physically hurt नहीं हुआ, लेकिन emotionally जरूर hurt हुआ है, and spiritual damage to him is even greater than even that is greater than him. The physical pain, he was in great shock and the world changed to him quite suddenly. और ऐसा लगता था कि उसके लिए दुनिया ही ऑलमोस्ट चेंज हो गई है। तो इंडिफरेंस उसने उसको दिया। इंडिफरेंस से मुराद है मतलब उसने एक तरह से लापरवाही का एटीट्यूड शो किया है। तो ये जो एटीट्यूड है दैट इज़ वेरी वेरी सैड, दैट इज़ वेरी ट्रेजिक, और इसी के ऊपर यह स्टोरी बेस करती है। अशक्स इंडिफरेंस टू हिम collapsed him ऑल टुगेदर। द वर्ड collapse जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा है कि उसने बिल्कुल ही उसकी दुनिया एक तरह से तबाह कर दी थी। वो कितना होपफुल था, कितनी खुशी से, कितने इमोशनल वे में वो फ्रूट पिक कर रहा था और इस तरह की चीज़ें कैरी कर रहा था, अपने तैयारी कर रहा था तमाम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम से उसके लिए डाउन होती हैं और वो एक तरह से collapse कर जाता है। नाउ the next topic, next questions, the next part of the questions, they are नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, यानी बी पार्ट इसका राइटिंग सजेशंस हैं। करेक्टर स्केच है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका करेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस बताया हुआ है कि करेक्टर और करेक्टर स्केच में क्या डिफरेंस है। करेक्टर स्केच मीन कि जब हम किसी स्टोरी में कहते हैं कि किसी का करेक्टर स्केच लिखना है, तो इट मीन्स कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसका रोल, उसकी क्वालिटीज़, उसके बैड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, each and everything that is included in the character sketch मीन उसका ओवरऑल एक पूरा उसने हमने उसका स्केच प्रिपेयर करना होता है। स्केच मीन कि ड्राइंग नहीं बनानी, बट इन वर्ड्स वी हैव टू ड्रा द स्केच ऑफ दैट पर्सन। लेकिन अगर हम करेक्टर की बात करें तो करेक्टर का मतलब है उसकी क्वालिटीज़, उसकी बैड क्वालिटीज़, उसके मतलब वो चीज़ें हमने बतानी है, उसकी क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़, ये थोड़ा सा खूबियाँ खामियाँ हमने उसकी बतानी होती है। ड्रा द करेक्टर ऑफ अशिक, was he justified in leaving village without meeting Navasad? जी, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि उसका करेक्टर स्केच के बारे में बताएं कि क्या वो जस्टिफाइड था। ऑफ कोर्स जस्टिफाइड नहीं था। अशक इज क्वाइट अ थैंकलेस चाइल्ड हु डिडंट केयर फॉर हिज रियल ब्लड रिलेशन। यानी सबसे पहली चीज़ जो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके करेक्टर के बारे में हमारे माइंड में आती है, दैट इज दैट ही वाज अ थैंकलेस चाइल्ड। थैंकलेस चाइल्ड था टू हिज फादर, टू हिज पैट्रन। ही केप्ट इन व्यू हिज सोशल स्टेटस, और उसने अपना सोशल स्टेटस जो था
वो अपने सामने रखा मेटेरियलिस्टिक अप्रोच, यानी वो हाई क्लास से बिलोंग करता था। अब वो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता था क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, ही वॉज वेरी रिच, ही वॉज वर्किंग इन सम हाई क्लास। हिज सोशल स्टेटस मेड हिम इनडिफरेंट टू हिज ओन अंकल, और उसने उसको उसके अपने अंकल से इनडिफरेंट कर दिया, मीन लाताल्लुक कर दिया, लापरवाह कर दिया। एंड बेनिफैक्टर मीन उसका पालने वाला, जो यानी उसने पाला था अल्लाह ताला की जात पालने वाली मीन के, लेकिन यहाँ पे अल्लाह के बाद डेफिनेटली उसने एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर उसके पास मौजूद था वो। काइंड वर्ड टू हिज बेनिफैक्टर एंड पैटर्न, उसने कोई काइंड वर्ड्स या कोई भी शुक्रिया अदा नहीं किया उसका। ही इज़ कैलस एंड कोल्ड, कैलस है, जालिम है, कोल्ड है, कोल्ड मीन्स मुराद अनफ्रेंडली है, कोई फीलिंग शो नहीं की अपने अंकल के लिए। ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन लिविंग विदाउट मीटिंग नवसार इन एनी वे, वो जस्टिफाइड नहीं था, उसको लाजमी मिलना चाहिए था उसको। जी, अभी हम देखते हैं अशक हैज़ कम अलोंग टू नवासा's हाउस नाउ टेकिंग clues from the text of the story the white lamb write their most likely conversation as one page dialogue। ये अब एक डायलॉग टाइप है कि आपने डायलॉग लिखना है, इसका खुद से आपने बना के लिखना है। किसके बारे में, यानी आप सपोज करें कि नवासाट जो है वो वहाँ पर आ गए, नवासाट के घर में मौजूद है वो, ठीक है, और आकर उसने उससे बातें की, ये आपने स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आपने खुद से करना है। नो टेकिंग वी शुड से दैट टेकिंग क्लोज फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के टेक्स्ट से आपने क्लोज लेने, और क्लोज लेकर आपने फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द वाइट लैम्प राइट देयर मोस्ट लाइकली कन्वर्सेशन एज वन पेज डायलॉग। ठीक है, तो वन पेज का आपने एक डायलॉग लिखना है खुद से, और ये आपकी असाइनमेंट भी होगी, ठीक है ना। ये बी पार्ट इसका जो है ये आपकी असाइनमेंट है आज के लिए, कि आपने ये करना है कि इमेजिन करना है कि अर्शक जो है वो नवासार के घर पर आ जाता है, वो उसका वेट कर रहा है और वहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद एक डायलॉग आपने लिखना है कि वो आपस में किस तरह से गुफ्तगू करते हैं। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरह से लिखना है लास्ट 5 मिनट्स में, ठीक हो गया। उसके बाद ये ओरल कम्युनिकेशन है। आस्क द स्टूडेंट्स टू सर्च द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे आपने ये सर्च करने। सोशल मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है, सोशल क्लास क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। सोशल हायरार्की क्या होती है, हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी क्या होती है, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या होती है, और अरेंज ग्रुप डिस्कशन कीपिंग इन इट्स कन्वर्सेशन एंड डायनामिक्स। तो ये जो चीज़ें आपने ये करना है कि आपने खुद से इनको स्टडी करना है। अ लिटिल बिट यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सोशल मोबिलिटी इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की जो मूवमेंट होती है उनको हम कहते हैं फैमिलीज़ की, हाउस की, और अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल विद इन आर बिटवीन सोशल स्ट्रेटा इन अ सोसाइटी। स्ट्रेटा से मुराद है यानी सोशल क्लासेस डिफरेंट होती है ना, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। तो एक क्लास से दूसरी क्लास में, या एक ही क्लास के अंदर, यानी अपर क्लास के लोग हैं वो अपनी अपर क्लास में मूव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। या इवन वो अपर क्लास से लोअर क्लास की तरफ मूव किया तो दैट इज आल्सो सोशल मोबिलिटी। हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी अब आगे, ये हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी क्या होती है। हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी रेफर्स स्विचिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विदाउट अ चेंज, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना, लेकिन उसमें क्लास स्टेटस चेंज नहीं हो रहा आपका, यानी आप इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सोशल क्लास टू अदर दैट इज नॉट हैविंग क्लास डिफरेंस, यानी क्लास डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करें तो वो हॉरिजेंटल है। वर्टिकल क्या होगी, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू अ पर्सनल ग्रुप्स मूवमेंट अप आर डाउन अ स्टेटस, एक स्टेटस से ऊपर जा रहे हैं तो भी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है, एक स्टेटस से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो भी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहलाएगी। अब सोशल क्लासेस क्या होती हैं। सोशल क्लास इज़ अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी कंट्री में किसी भी एरिया पर अगर कोई सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स है अकॉर्डिंग टू, यानी ये लोअर क्लास है, ये पुअर क्लास है, ये अपर क्लास है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स स्टेटस जो है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द अदर एजुकेशनल स्टेटस भी हो सकती है, तो डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। सोशल साइंसेज एंड पॉलिटिकल थ्योरी सेंटर्ड on models of social stratification which occurs in class oriented society in which people are grouped into a set of hierarchical social categories। hierarchical मुराद है कि उसमें यानी आपने अरेंज किया हुआ है कि कुछ आइडियाज़ हैं उनकी बेस के ऊपर, कि इसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है तो ये इस क्लास से बिलोंग करता है, उसके अंदर ये चीज़ है तो ये इस क्लास से बिलोंग करता है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस कैटेगरीज आर द अपर मिडिल एंड लोअर क्लासेज, यही कैटेगरीज हैं, ये हम आमतौर पर देखते भी हैं और हमें पता भी है अपर क्लास से मुराद है जो बहुत जिनके पास बहुत ज़्यादा वी शुड से दैट कि फाइनेंशियली अगर हम देखें इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा रिच हैं। मिडिल क्लास है जिनके पास थोड़ा ही मतलब कुछ पैसा है कुछ नहीं है। लोअर क्लास है जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है या बिल्कुल जो गरीब है।
तो सोशल हायरार्की से मुराद ये उनकी अरेंजमेंट है, यानी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में जो अरेंज किया जाता है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम सोशल हायरार्की कहते हैं, राइट। तो ये एक वैसे हमारे पास टॉपिक्स हैं, लेकिन आपकी जो असाइनमेंट है आज की, वो यही है कि आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है वो डायलॉग, यानी आपने ये सपोज करना है कि अशक जो है वो नवासाट के पास आ गया है, वहाँ पर मौजूद है, और आने के बाद वो मतलब वी शुड से दैट कि नवासाट वाज वेटिंग एंड ही केम, वहाँ पर मौजूद आ गया, और मौजूद आने के बाद उसने वहाँ पे उससे बातें करना शुरू की हैं। तो आपने सपोज करना है कि वो किस तरह से बातें करते हैं जी। तो ये आपका असाइनमेंट है, आपने ये लिखना है, आपने एक आंसर शीट्स लेनी है, और आंसर शीट के ऊपर पेपर के ऊपर आपने लिखना है डायलॉग बिटवीन अर्शक एंड नवासात ऑन हिज अराइवल, यानी उसकी अराइवल के ऊपर, ऑन द अराइवल ऑफ अर्शक, द डायलॉग बिटवीन अर्शक एंड नवासात, ये आपका टॉपिक है। एंड एट लीस्ट आपने 2 पेजेस का ये डायलॉग लिखना है। आपके उसमें भी ये डायलॉग का एक क्वेश्चन ज़रूर आता होता है, तो आपने उसको माइंड में रखना है, राइट, और उसके हिसाब से आपने लिखनी है। डेफिनेटली ये इनफॉर्मल डायलॉग में आएगा, ऑफ कोर्स फॉर्मल नहीं होगा। इसमें आप ग्रीटिंग्स भी शो कर सकते हैं, इसमें आप इस तरह की बातें भी ऐड कर सकते हैं जो कि आमतौर पर फॉर्मल उसमें नहीं होती, बट इट मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 2 पेजेस, और इसमें कम से कम मिनिमम तो 8, अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड रिक्वायरमेंट 8 सेट्स होते हैं डायलॉग में, लेकिन आप एटलीस्ट इसमें 15 सेट्स ज़रूर लिखें जो कि आपके एटलीस्ट 2 पेजेस को कवर करेगा जी। अब मैं आपको क्वेश्चनिंग के लिए टाइम दूंगा, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन वट एवर यू लाइक related to the topic,